Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind and now I see. My chains are gone. I have been set free. My Savior God has ransomed me like a rushing flood. His mercy reign, unending love, amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. My chains are gone. I have been set free. My Savior God has ransomed me like a rushing flood. His mercy reign, unending love, amazing grace. Thou, Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all God. We exalt thee, we exalt thee, we exalt thee. Oh, Jesus Christ, God Almighty God. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Savior of us all. Savior of us all. Jesus Christ, God Almighty God, Lamb of God, you reign forever. We praise thee, we praise thee. We praise your name, we exalt your name. Holy of holy, holy are you, Lord. King of heaven and King of the earth. King of kings, Lord of lords, O Lord our God, Almighty God. We praise your name, we praise your name. Holy, holy, our Lord God Almighty, our hiding place, our fortress. O Lord Almighty, O strong mighty rock,
Oh, our hiding place, our dwelling place, our resting place, oh, our resting place. We sing holy, holy to the Lamb of God. You reign forever. You've given yourself to save us all. We praise your name. We praise your name. Thank you, Father. There's no other God before you. There's no one like you. There's none beside you. There's nobody who cares about us, Lord. There's only one living God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, our Savior, our Redeemer, and our hiding place and our fortress, our rock of salvation. The merciful, loving, kind, gracious Father, we honor and praise and we glorify your name, Lord. Come and speak to us, fill us with your spirit, Lord. We are gathered here and before your presence, we gather into your courts, O Lord. We gather into courts with a thanksgiving. Our heart is full of giving you a thanks and full of your praise and honors. We honor thee, we praise thee, we glorify your name, Lord. Our heart is full of thanksgiving, O Lord. No matter how much we give you thanks and praise, it's not enough, Lord, that we are your cause and we are here, your children's Lord, unto your merciful, Lord, that you fill us with your spirit, Lord. All listen our prayers and petition which we bring before you. We have brought before you. We are continuously bringing before you, Lord. In your Son precious name, heal every heart, heal all the sicknesses, diseases, lift up all a breakthrough, break all the stronghold and all the hardship in the people's life, Lord. Pour down your mercy upon to everybody's Lord. Pour your mercy upon to the heaven, from heaven, on the face of the earth, Lord. Let all the flooding be ceased in your Son precious name. Be stopped. All the rains and the heavy rains and the flood be stopped. Let all your inhabitants be stay protected and alive. Protected, keep them alive, keep them safe, protect them under your wings, Lord. And be with everybody's Lord. Let your name be praised on all the face of the earth, Lord. Let every tongue confess that you are the mighty God, you are the living God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, who are in this come, who is Alpha and Omega, life and resurrection, beginning and the end, our hiding place. Thank you, Father, for this once again, for this wonderful fellowship that we are having with you through your Son in your Son presence and through the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for gathering us all. We continue to honor and praise your name, Lord. In your Son precious name. Amen. आइए हमारे साथ पास्टर कुलदीप हैं, हम उनके साथ मिलकर खुदा उनकी प्रस्तुति में गीत गाएंगे, फिर उसके बाद हम अपनी दुआया सेशंस में जाएंगे। जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है हम उन पे दुआ करेंगे। आए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, हालेलुया, उसके नाम की स्तुति महिमा करेंगे, क्योंकि सच में प्रभु ने ये हमें समय दिया। इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, इस सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए। हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल।
आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। ग्लोरी। कौन है तेरा केवनहारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र हो गए बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र हो गए बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। हाँ, मैं तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हाँ, अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। सच में ये तेरी दया है प्रभु, अब तक आपने संभाला। ये तेरी कृपा है प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर, जो आपने हमें अब तक संभाल के रखा परमेश्वर, अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखा। धन्यवाद प्रभु। आपके वचन में लिखा है हालेलुया भजन 17:16 में कि तेरे पास आनंद की भरपूरी और तू हमारे दाहिने हाथ को संभाले रखता है परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, सच में आप ही हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है पिता। हालेलुया। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपने स्तुति महिमा करने के लिए सहायता किया। धन्यवाद। प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में आशीष मांगते हैं। आमेन, आमेन। आमीन। हम सब जानते हैं कि जब हम खुदा की हुजूरी में दुआ करते हैं तो हमें मुसलसल दुआ करना। हमने पढ़ा था कि हम किस तरह, कल हमने कलाम किया था कि हमें मतलब हमारा जो ब्रेक थ्रू है हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, कि हमारी जिंदगी का मकसद जो है वो हमारी जिंदगी जमीन पर इतनी इजी नहीं है। कोई चीज जो है वो हमें अपने ऐसे बैठ के नहीं मिलनी, एफर्ट करनी पड़ती उसके लिए। बड़े स्ट्रॉन्ग होल है, बड़ी हार्डशिप है, बहुत सारी हार्डशिप से हमें गुजरना पड़ता है सरवाइव करने के लिए। लेकिन खुदावन जो कसरत का खुदावंद है वो हमें मुहैया करता है।
वो कहता है कि हम कहता है कि कौन सी ऐसी रीजन है कि जबकि हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती। तो उसमें ये है कि जब हम दुआ मांगते हैं तो हम गलत फायदे के लिए दुआ मांग रहे होते हैं, और हम अपने आप को कंप्लीटली हम्बल ही नहीं करते। जब तक हमारा दिल जो है वो हम्बल नहीं होता और खुदा की जरूरी नहीं आती कोई हमारी दुआ, तो हमारा दिल हम्बल तभी होता है जब हम पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, पूरे दिल से उसकी प्रस्तुति करते हैं, पूरे दिल से उसकी हम्द और सताइश करते हैं। तभी जाके, जब तक हमारा दिल हलीम नहीं होता, मैं बार बार कहती हूँ, तो वो जो कि खुदावन के दिल के मुआफिक बैठता है। ये खुदावंद हम्बल है, वो चाहता है कि हम हम्बल हों, तो तब तक हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती। उसमें कहता है कि अगर हमारे ऊपर कोई ऐसी चीजें हैं, कभी कभी होती हैं, खुदावंद हमें और ईमान में मजबूत करता जाता है, हमारे अंदर और शक्ति बढ़ता है, स्ट्रेंथ देता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करता है, ताकि वो चीजें जो है वो हल होने के लिए हैं। तो इसलिए जब हम दुआ करते हैं तो अच्छे मोटिव से दुआ करें। हमारे जो अंदर जो सिन है उनकी सबकी कन्फेक्शन करें, उन सबको निकालें। हमारे अंदर जितनी गंदगी है, हमारी सोचों में, हमारे दिल में, हमारे ख्याल में, उन सबको हमें मतलब उनसे उनको झिड़कना है, पाक साफ करना है, अपनी रूह को, अपने दिल को, अपनी सोचों को, अपनी ख्यालों को पाक रूह के मुताहिद करना है, साफ करना है। फिर उसके बाद वो कहता है कि जब हमारे गुनाह माफ नहीं हुए होते, कुछ गुनाह हमारे अंदर होते हैं कि हम मतलब नेगेटिव तरीके से सोच रहे होते हैं, पूरे ईमान के साथ पॉजिटिव तरीके से नहीं आते, दिल हम्बल दिल के साथ नहीं आते। हमारे अंदर ईगो है, प्राइड है, फखर है, घमंड की रूह है, जो कि खाली खाली है। घमंड की रूह में रिचनेस नहीं है। अगर रिचनेस है तो हम्बलनेस में है। तो हम्बलनेस में सारी आसमान की रिचनेस छुपी हुई है हलीमी के अंदर। तो हमें हलीम होके खुदा उनकी जुरी में आता है, अपने दिल को हलीम करना है, शक नहीं करना, थोड़ा इंतजार भी करना है। जितने हमारे फैमिली मैटर्स है, हमारे बहन भाइयों के साथ जो भी है, सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है उनको रिजॉल्व करना है। अपना जो खाता है उसको क्लियर रखना खुदा उनकी जुरी में, कि हमारे ऊपर मतलब लोग बेशक हाथ उंगली उठाएं, लेकिन खुदावंद की उंगली हमारी तरफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुदावंद की हमारी तरफ फेवर होनी चाहिए। इसीलिए हम इसके बारे में भी सीखेंगे, लेकिन आइए हम अपने दुआया सेशंस में जाएंगे। तो मैं पास्टर कुलदीप